So hello everyone, this is Sheikh Saluja, and recently I was reading this book, 7 Habits of Highly Effective People, and I really like this concept, so I'm gonna share this with all of you. So इसमें होता क्या है? I will start with the story that I read. तो क्या होता है? There's a metro train. लोग उसमें मेट्रो ट्रेन में बैठे होते हैं. Someone is reading the book. Someone is half asleep. Someone is just doing nothing, watching here and there. But everyone is quiet. Everyone is at peace. There's no disturbance, no irritation, nothing. So until there is a family that enters the metro train. One father with 3 children. तो वो एंटर करते हैं. उसके बाद क्या होता है? फादर एक ही कोने पे, like corner, he sat in the corner and children's here and there, like they are making a lot of disturbance. So what they enter the metro train and then what happened? Father quietly sits and being unnoticed about his children. वो कोने में बैठ जाते हैं मेट्रो ट्रेन की सीट पर. एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो 3 चिल्ड्रन दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. वो इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं. वो काफ़ी छोटे होते हैं बच्चे. वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं. एंड आसपास के जो लोग होते हैं, दे डू गेट डिस्टर्ब, दे आर फीलिंग इरिटेटेड, बट नो वन इज सेइंग एनीथिंग टू देम. So there was a person who was constantly looking at them and thinking कितना नॉइज हो रहा है. And see the father, फैमिली को संभालना नहीं आता क्या? He just starting commenting. फैमिली को संभालना नहीं आता कि इतना ज़्यादा नॉइज करें. And see father is not saying anything to their children. दूसरे लोगों का भी तो सोचना चाहिए. He is not able to read his book. He is not able to focus. Then एक लिमिट होता है, right? He waited till a limit. Then he just went to the father and told, "Excuse me, can you just notice your children, please? They are making a lot of disturbance and I'm getting a lot of headache because of that." And the father suddenly came back to the senses. He was like, "I'm really sorry. I was not in the right mind. I'm really sorry. I didn't notice that my children were making a lot of noise. Actually, just a while back, my wife died in the hospital. So I was not in the right mind. I will just take care now. Sorry for the disturbance." Damn. Boom. Suddenly what happened? The person who was so irritated, the person who was so stressed, thinking changed. Now he was feeling so sympathy. He was feeling that pain of the father. He suddenly changed his words to, "Are you fine? Can I help you in any way?" जो फीलिंग थी इरिटेशन की, जो फीलिंग थी स्ट्रेस की, वो सब गायब हो गई. वो सब खत्म हो गए एक्चुअली. So the thing I want to tell you from this video is that don't judge people so quickly without knowing their full story. Maybe the person you are seeing that is very rude, maybe they are dealing with some stress. The lazy person, a lazy student that is academically poor, that is not doing anything, maybe they are dealing with some family problems. A angry employee at the company, maybe they just got divorced or something might happen. So don't judge people so quickly, like why are they like that, why they can't understand. And also the same thing applies to you. Like if you fail at something, instead of saying I'm a failure, I'm a loser, just say where I missed, what is the real reason that happened. Maybe you need more practice, maybe you need a better strategy, maybe you need a different strategy, or maybe you need rest. So instead of blaming yourself, instead of saying bad words to yourself, instead of hurting yourself, try to figure out what might the real cause is. So change your perspective, change the way you look at yourself too. इस स्टोरी से हमें ये भी समझ में आता है कि अपने आप का नज़रिया, अपने आप को जिस तरीके से आप देखते हो वो भी चेंज करो. क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, हम लोग अपने आप को एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि हम वर्थ इट नहीं है, हम क्यों स्टार्ट करें, हमसे नहीं होगा, बिकॉज बेस्ड ऑन आवर ओल्ड बिलीव्स, जैसा हम अपने आप को आज तक देखते आए हैं. एंड दैट्स वाई चेंजिंग इज डिफिकल्ट. बट इफ़ यू स्टार्ट seeing yourself as a different person, no, फेल हो गए तो क्या हुआ, मैं डिफरेंट पर्सन. अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इतना, जब हम लोग अपनी बैड हैबिट्स होती हैं, वो बैड हैबिट्स को बनते में तो इतना टाइम हो जाता है. एंड जब हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम लोग चाहते हैं हम एक दिन में चेंज हो जाए. अरे जिन बैड हैबिट्स को बनने में 1 साल लग गया, जिन बैड हैबिट्स को 6 महीने तक आप कंटिन्यू करते रहे, उसको आप एक दिन में कैसे सही कर सकते हो. सो हम लोग एक दिन ट्राई करते हैं, हम लोग 2 दिन ट्राई करते हैं, हम लोग इजिली गिव अप कर देते हैं, राइट. एंड हम लोगों का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से होगा ही नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने इतनी बार कोशिश करा, मैंने कितनी बार ट्राई करा,
बट जिन बैड हैबिट्स को बनने में इतना टाइम लगा तो उनको छूटने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? मैं चाहती हूँ अपने परसेप्शन को चेंज करो. डोंट सी योरसेल्फ एज अ पर्सन जो नहीं कर सकता. इवन इफ यू हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स एंड इफ यू हैव फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, डोंट सी योरसेल्फ एज अ पर्सन जो ट्राई करके फेल हो गए. सी, ओके, आई ट्राइड, आई विल ट्राई मोर. I will try more. As the Michael Jordan quote says, please go for your dreams. You can become whatever you want to become. You can become whatever you want to become. Just change your mindset कि आप बन सकते हो. Believe रखो कि आप कर सकते हो. Change your mindset. But अगर आप अपने आप को उसी नजरिए से देखते रहोगे कि नहीं कर सकते, नहीं होगा, मैंने बहुत बार ट्राई करा है, नहीं कर सकते, कैसे होगा? क्योंकि मैंने इतनी बार ट्राई करा. That's the proof that नहीं हो पाएगा. So नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, because you are giving yourself as a proof, right? But if you change your perspective, अगर आपको रियल रीजन समझ जाएगा कि जिन बैड हैबिट्स को बनने में इतना टाइम लगा उनको छूटने में भी टाइम लगेगा. आप अपने आप को समझने लगोगे कि एक दिन में चेंज नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हर दिन में भी. अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे लेकिन आप स्टार्ट करें 10 मिनट्स से, आपने स्टार्ट कर, देन 10 मिनट्स को 11, 12, 13, मे बी स्लो. प्रोग्रेस को एकदम फास्ट होना जरूरी नहीं है कि आज 1 घंटा पढ़ाई की तो कल 10 घंटे पढ़ाई कर ली. नो, 1 घंटा 1 मिनट भी पढ़ाई करी तो वो भी प्रोग्रेस में आती है. वो कहते हैं ना, टर्टल्स, उनकी एक कछुआ, राइट, उनकी एक खासियत होती है, पता है क्या? कि वो एक दूसरे से रेस नहीं करते हैं. वो मंजिल तक पहुंचते जरूर हैं, चाहे वो जितना भटक जाए, चाहे वो जितना धीरे चले, लेकिन वो मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं. बिकॉज एट देयर ओन पेस. अगर वो रैबिट को देखने लग जाएंगे ना कि यार रैबिट तो बहुत तेज भाग रहा है यार, मैं पीछे रह गया, तो कभी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे. मोस्ट ऑफ द टर्टल्स दे रीच देयर डेस्टिनेशन नो मैटर हाउ स्लो दे आर मूविंग. सो इवन अगर आपकी प्रोग्रेस स्लो है, यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनेशन. आप पहुंचोगे. सो थ्रू दिस वीडियो, सो आई एम गोना एंड दिस वीडियो एंड आई जस्ट वांट टू एंड विद दिस मैसेज कि अपना परसेप्शन चेंज करो. अपने लिए जो आप अपने जिस नजरिए से आप अपने आप को देख रहे हो वो नजरिया चेंज करो. क्योंकि अगर आपने अपना नजरिया चेंज करा, आपने अपना परसेप्शन चेंज करा अपने लिए, it will bring a massive change in your life. It will bring a massive change. And याद रखिए, जिन बैड हैबिट्स को बनने में इतना टाइम लगा उनको छूटने में भी टाइम लगेगा. एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा. Let's grow together, let's win together. Join us on this journey. Let's talk learning from every journey, big or small. Bye bye.